Welcome back to Chansey Academy. I hope you all are safe at your home. Okay, so today is the another lecture of the chemistry, and in the previous, if you have seen the previous video of my lecture, in the previous video I have told the detail about the first 20 elements, the symbol of the first 20 elements, how we can write the electronic configuration of the 20 elements. And if you remember, I have told you that in total there are 11 elements which is start from the different name but can be denoted by the different name. So first we will see in this video the first 11 elements that can be start with the other name and can be denoted by the different symbol. And after that we will see the topic valency, which is very basic topic but very important topic in the concepts of the chemistry. Okay, so first we will see the Latin names of the 11 elements. So simply previously we had drawn the table elements, Latin names and their symbol. Okay guys, so first of all the first element जो स्टार्ट किसी और नाम से होता है और हम डिनोट उसे किसी और से नाम से करते हैं, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव देयर लैटिन नेम्स. So we will see one by one that 11 elements in the detail. So first of all, अगर हमने first 20 elements देखा होगा तो इसमें हमारे 2 से 3 elements ऐसे थे जो स्टार्ट किसी और से हो रहे हैं और सिंबल हम उन्हें किसी और से दे रहे हैं. तो if you remember, तो सबसे पहले आता है सोडियम. ओके गाइस, सोडियम. सोडियम को हमने डिनोट किससे किया था? Na, बट वो स्टार्ट किससे होता था? SO से. I had told you they had their Latin name. तो सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम. What is the name of sodium? Latin name? Natrium. That's why we denote sodium with the symbol Na. I hope you are getting it. This is not too much stuff. This is just for the understanding. Second will be sodium. Second we will take copper. Latin name of copper is, let me underline this, you will be clear. Okay, so second is the copper. The Latin name of the copper is cuprum. That's why we denote copper as Cu. Okay, are you getting it? Copper. And the third will be, we will take mercury. Hydragyrum. That's why we denote mercury as Hg. Mercury, all know in the we use mercury for measuring the temperature. Fifth we will take lead, we can say this. Plumbum, the Latin name of lead is plumbum. That's why we denote lead by the symbol Pb. Okay. Fifth we will take most used element in everybody's house, that is silver. The Latin name of silver is argentinum. That's why we denote silver as the symbol Ag. Now sixth will be gold. Gold, very useful and very used elements in every house. Gold, the Latin name of gold is aurum. That's why we denote gold with Au. Can you remember more element? Please remember. And 7 we will take tin. Stannum. St. T is denoted by St. 8 we will take antimony. Antimony is stibium. Sorry guys. This is stannum and stannum is denoted by Sn, and antimony is stibium. Stibium is denoted by St. Now 9th we will take, which one is remaining? Potassium. We denote potassium by K because the Latin name of the potassium is kalium. That's why potassium is denoted by K. Now 10 will be, which one is remaining? Iron. The Latin name of iron is ferrum. That's why we denote
ONS Fe, and last but not the least, tungsten. Tungsten, and the Latin name of the tungsten is wolfram. That's why we denote tungsten as W. Very simple. ये हमें पता होना चाहिए, सिंपल है, बट वी शुड नो द लैटिन नेम ऑफ ऑल द 11 एलिमेंट, बिकॉज जब हम रिएक्शन करते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं, सो वी विल गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज Sn, व्हाट इज St, व्हाट इज Au, व्हाट इज Ag. अगर हमें ये सब पता होगा तो वो हमें क्या होगा, मोर क्लियरली होगा. You can also take the screenshot if you want to take the screenshot. You can also take the screenshot for your better information. So this is the very basic topic and basic चीज I want to share with you all. Okay guys. तो अभी आपने देखा कि हमने 11 एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया था. अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी. बहुत ही इजी भी है, लेकिन बहुत ही उसके साथ साथ क्या है, इंपॉर्टेंट है. तो वैलेंसी की बात करने के पहले सबसे पहले तो वैलेंसी क्या होता है ये हम बात करते हैं. देखिए गाइस, हर किसी को यहाँ पर हम स्टेबल होते हैं, हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम हमारी नींद लेते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम हमारा घर बनाते हैं. हम ये सब चीजें क्यों करते हैं? लाइफ में स्टेबल होने के लिए. आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? वी आर स्टडी. व्हाई वी आर स्टडिंग? बिकॉज वी वांट टू गेट स्टेबल. हम सब यही बोलते हैं कि वी वांट टू गेट स्टेबल इन आवर लाइफ, वी वांट टू गेट स्टेबल इन आवर लाइफ. ये नेचर ही है. दिस इज द केमिस्ट्री, दिस इज द नेचर. जो भी चीज आई है उसे इस लाइफ में स्टेबल होना ही है. वैसे ही कहानी किसकी है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स की है, हमारे एटम्स की है. वो भी क्या करते हैं? उन्हें भी क्या होना होता है? स्टेबल होना होता है. अब जाहिर सी बात है, एटम तो खाना नहीं खा सकते, इलेक्ट्रॉन्स तो खाना नहीं खा सकते ना हमारी तरह स्टेबल होने के लिए. जाहिर सी बात है, उन लोगों की केमिस्ट्री होती है डिफरेंट. तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, इन लोग कैसे ये लोग स्टेबल होते हैं? इसे कहते हैं वैलेंसी. वैलेंसी मतलब किसी भी एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब वो स्टेबल होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से लेगा. अब ये क्या लेता है, क्या देता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हम जैसे जैसे उसके ऊपर पढ़ेंगे वैसे वैसे वी विल गेट नो दी बेटर वैलेंसी. देखिए गाइस, ये सब ऐसे टॉपिक है, ये सब आपको मगअप नहीं करना पड़ता है. ये अगर आप मगअप करेंगे आपको कभी लर्न नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ दिस टॉपिक. अगर आपको बेसिक पता है तो आपको लाइफ में कभी भी ये सारी चीजों की मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो वी विल सी दी वैलेंसी. अब देखिए, वैलेंसी का सीधा जो अपना जो रिलेशन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए. ये भी बात है कि वैलेंसी आपको पढ़ने के लिए मेरा एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, वो भी आपको जरूर देखना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउट्स आएंगे. तो अगर डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली जाइए और मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखिए. वैलेंसी, अब मैंने वैलेंसी बोला है कि वैलेंसी ये है कि कोई भी एटम को सेटिस्फाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, वो या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है. उसे ही क्या कहा जाता है, उसकी वैलेंसी कहा जाता है. सिंपल वर्ड्स में इसका एक डेफिनेशन है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, वही फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को हम लेते हैं और उनकी वैलेंसी के बारे में वी विल सी इन दी डिटेल. तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, हमने लिया था क्या, मैं लेती हूँ मतलब मैं भी लेती हूँ. ये सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो सीक्वेंस है वही हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमारा था क्या, हाइड्रोजन. ओके, दिस इज एलिमेंट्स. ओके, हाइड्रोजन लिया था. हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था. ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा था, 1. करेक्ट, राइट, लिखते हैं. ओके, तो देखिए, सो हम लोग ये पढ़ने के पहले एक थोड़ी सी चीज पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में. ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके लास्ट शेल में रहेंगे 8 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है. मतलब मैंने जैसे बताया, अब एटम तो खाना नहीं खाएंगे ना स्टेबल होने के लिए. उन लोगों की कैपेसिटी होती है. ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कहता है कि वही एटम
स्टेबल हो सकता है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके लास्ट ऑर्बिटल, जिसके लास्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो 2 या तो 8। ओके, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन। डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे जैसे वी विल गेट प्रोसीड you will get clear in detail, so just relax and have patience. Okay, तो second we will take हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद we will take हीलियम। ओके, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 2, करेक्ट है। लेट मी राइट थर्ड आल्सो, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, and the electronic configuration of the lithium we had written 2,1. चलो, let's talk about the valency. Now let's talk about the valency of these elements. देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ, उसकी कोई कहानी ही नहीं है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मैंने क्या कहा था, या तो उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और दे हैव देयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल विल बी 8। ओके, या तो 2 या तो 8। अब डेफिनेटली गाइस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वर्ड्स में हमने लिखा था 1। अब इसे स्टेबल होने के लिए लास्ट में या तो उसे 8 बनाना है या तो उसे 2 बनाना है। गाइस, समझ में आ रही है बात? अब डेफिनेटली 8 बनाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे किसी से, जाहिर सी बात है, या फिर उसको 2 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से। तो क्या उसके लिए इजी है 1 इलेक्ट्रॉन लेना या 8 इलेक्ट्रॉन लेना? डेफिनेटली उसके लिए इजी क्या रहेगा, टू टेक दी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम एंड गेट स्टेबल। इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। ओके, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे समझेंगे, डोंट गेट पैनिक। हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा है, 2। अब 2, जैसे कि मैंने बोला है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, वो ही एटम्स स्टेबल हो सकते हैं जिसके लास्ट सबशेल या लास्ट ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 या तो 8। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है 2, मतलब उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ना ही उसको किसी से लेने की जरूरत है, ना ही उसको किसी से देने की जरूरत है, मतलब उसका जो वैलेंसी होगी क्या होगी, 0। आर यू गेटिंग इट? बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिथियम, लिथियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,1। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल अगेन देयर मस्ट बी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अब लिथियम को स्टेबल होने के लिए लास्ट में उसको या तो 8 बनाना है या तो उसको 2 ही रखना है। तो जाहिर सी बात है उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसको इजी रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देना इजी रहेगा। Which way is the easier? Definitely to lose 1 electron and to get this stable. So the valency of the lithium will be 1. I hope you are getting it. काफी इंटरेस्टिंग है। Now fourth, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम के बाद हमारा आता है बेरिलियम। ओके, बेरिलियम। Now बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन we had written 2 and 2. We had written 2 and 2. तो बेरिलियम की कितनी वैलेंसी होगी? अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बेरिलियम तो इसके तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में 2 है, तो इसको तो ना ही लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है। बट क्या ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है? क्या ये इसका लास्ट ऑर्बिटल है? लास्ट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो इसने 1 दे दिया, मतलब इसका जो ये 1 है ये पूरी तरह ओके। तो बेरिलियम की हमारी लास्ट में हमें कैसे है 2 and 2। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 8 बनाने के लिए उसको आखिरी में आइदर बेरिलियम want to take 6 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम want to lose 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए कौन सा इजी रहेगा, डेफिनेटली उसके लिए क्या इजी रहेगा, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन and get the stable electronic configuration of the 2. Therefore the valency of the beryllium is 2. Now fifth number is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Why I am repeating, मैं again and again ये चीज क्यों बोलती रहती हूँ, because अगर आप ऐसे again and again बोलेंगे तो आपको भी ये सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, लर्न होते चलते हैं। So repeat it every time when you write the element electronic configuration, repeat it every time. ओके, सो फिफ्थ नंबर पर है बोरॉन।
boron and the electronic configuration of the boron is 2 and 3. Very easy. लास्ट में उसे क्या बनाना है, H बनाना है या तो उसे 2 बनाना है। तो अब उसको 8 करने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, या तो उसको 2 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो 2 के पास ही जाएगा, वो 8 के पास क्यों जाएगा, क्योंकि उसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना किसी दूसरे से ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, या उसको 3 लूज करना, जाहिर सी बात है उसको 3 लूज करेगा और वो किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, हीलियम का। इसीलिए इसका जो वैलेंसी आती है, इसकी जो वैलेंसी रहेगी ये क्या रहेगी 3, बिकॉज इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये लेगा एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 का, तब जाके बोरॉन क्या होगा, स्टेबल होगा। वैसा ही 6 बेरिलियम बोरॉन कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। अब देखिए उसको या तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन या तो उसको 4 देना पड़ेगा या तो उसको 4 लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है उसके लास्ट ऑर्बिटल में उसको कितना लाने का है, 8 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो वो 4 लूज करे या तो वो 4 गेन करे, उसके लिए दोनों भी सेम ही है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। वैलेंसी इज नथिंग, वैलेंसी एक सिंपल क्या है, the capacity of the combining atom to get the stable electronic configuration. What is valency? Again I am repeating, the capacity of an element either to lose electron or either to gain electron to get the stable electronic configuration, that is known as the valency. अगर हिंदी में हम बोले तो क्या बोलेंगे कि वैलेंसी सिंपल क्या है, उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जितने भी एलिमेंट देना पड़े या लेना पड़े उतनी उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। चलिए 7 नंबर पर है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, तो उसको लास्ट में 8 लाना है हमारे। तो लास्ट में 8 लाने के लिए डेफिनेटली या तो वो 5 को क्या करेगा, लूज करेगा, या तो 3 को क्या करेगा, गेन करेगा। तो डेफिनेटली इसकी जो वैलेंसी हो जाती है ये कितनी हो जाती है, ओके। तो 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखा था, 2 and 6। तो उसको लास्ट में 8 बनाना है, या तो वो 6 को लूज करेगा या तो वो 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली गेन करेगा। एंड विच वे इज द इजियर टू गेट ऑक्सीजन स्टेबल, डेफिनेटली टू गेट द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर outermost shell and the valency, that's why the valency of the oxygen is 2. Very simple, I think you all are getting it. Now 9 nitrogen, oxygen, fluorine and the electronic configuration of the fluorine is 2 and 7। लास्ट में 8 करना है, बहुत ही इजी है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 7, तो उसको लास्ट में 8 करना है डेफिनेटली, या तो 7 लूज करेगा या तो 1 को गेन करेगा। तो which one is the easier, definitely to gain 1 electron, that is why the valency of fluorine is 1। 10 number is neon। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन इज 2 and 8। अब क्या करने का है, अब क्या, what we will do now, नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है 2 and 8, तो इसके लास्ट में 8 है। अब इसे क्या करना है, क्या ये लूज करेगा या गेन करेगा, what do you think, कि ये लूज करेगा या गेन करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, बिकॉज इसके लास्ट ऑर्बिटल, इसके लास्ट शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, द एटम विच हैव 8 electron in their outermost shell is an stable element. Therefore, the neon is an stable element, and if the neon is an stable element, the valency of an stable element is always 0। कैसे, अब देखिए हीलियम की भी वैलेंसी हमने यहाँ पे 0 बोला, नियॉन की भी वैलेंसी हमने 0 बोला। क्यों, बिकॉज इनके इसके लास्ट में 2 है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल लास्ट में उसके 2 है, बिकॉज वो स्टेबल है, या उसके लास्ट में 8 है, इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे हीलियम और नियॉन, ये जो 2 गैस है हमारी, ये जो दोनों गैस है, ये जो दोनों एलिमेंट है, ये हमारे क्या है,
स्टेबल एलिमेंट है, दैट्स व्हाई देयर वैलेंसी इज 0। और इन्हें हम स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ना ही इनको किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जरूरत है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत है। इनके पास ऑलरेडी उनकी क्षमता, उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में स्टेबल होते हैं, उनमें से ही ये हमारे हीलियम है और ये नियॉन है जो बहुत ही स्टेबल है, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। And the most important thing, the element which are the stable are known as the inert gas element. Are you getting me? मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट स्टेबल होते हैं, जो एलिमेंट पहले से ही स्टेबल है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट मतलब मैं किसी से रिएक्ट नहीं करूंगा भैया, मेरे पास मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे पास पूरी, मेरे घर में सब चीजें, मुझे किसी के दूसरे के घर की कोई चीज नहीं चाहिए। इसीलिए हीलियम और नियॉन को कौन से गैस बोले जाते हैं? इनर्ट गैस भी इन्हें क्या बोले जाते हैं? ओके, सो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितना इंटरेस्टिंग है उतना इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो अब नेक्स्ट 11। ओके, 11 एलिमेंट इज आर सोडियम। ओके, सोडियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? Na से। अभी हमारी इसके पहले ही हमारी बात हुई है, बिकॉज सोडियम को Na से क्यों डिनोट किया जाता है? बिकॉज सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, इसलिए उसे Na से डिनोट किया जाता है। ओके, ये सब भी आपको बार बार पढ़ते रहना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम क्या था हमारा? 281। अगेन उसको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, या तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ना। उसके लिए कौन सा इजी है? डेफिनेटली उसके लिए इजी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और भैया जल्द से जल्द क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। वही उसके लिए काफी इजी रहेगा। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, 16 will be sulfur, 7 will be chlorine, argon, पोटेशियम। गाइस इसे बार बार करते रहिए, इसे बार बार बोलते रहिए। 20 एलिमेंट्स जितने भी बार हम पढ़ाई करते हैं, जितने भी बार हम स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना, सो प्लीज ऑलवेज स्टार्ट सेइंग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बोलते रहिए, जिससे आपको काफी इजी जाएगा ये सब चीजें लर्न करने के लिए। आर्गन, पोटेशियम एंड 20 विल बी कैल्शियम। ओके, सो वी विल सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 282। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं बार बार वही कह रही हूँ, यू हैव टू गो टू माय द प्रीवियस वीडियो, which in the previous video I had in the detail I had explained all the electronic configuration how we can write. Okay, so कुछ भी डाउट आता है ये सारी चीजों में, प्लीज गो टू दी प्रीवियस वीडियो। मैग्नीशियम 282, जाहिर सी बात है क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। एल्यूमिनियम इज 283। स्टेबल होने के लिए या तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, या तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो डेफिनेटली उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। सिलिकॉन इज 2H4, therefore the valency of the silicon is 4. I hope you all are getting it. Very simple and very easy and very interesting also. Phosphorus electronic configuration is 285. That's why the valency of phosphorus is 3. 285। अब जाहिर सी बात है, या तो उसको 5 क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, या तो उसको 3 क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए क्या इजी रहेगा कि वो क्या करे? 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? गेन करे। 5 को ना देते हुए वो 3 को क्या करे? गेन करे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस विल बी 3। सल्फर 286। अब उसको लास्ट में 8 बनाना है, तो उसको या तो उसको 2 लेना पड़ेगा, या तो उसको 6 देना पड़ेगा। तो कौन सा इजी है उसके लिए? डेफिनेटली उसके लिए 2 इजी है लेना, इसलिए उसकी वैलेंसी हो गई 2। क्लोरीन का है 287, उसको लास्ट में
करना है और लास्ट में अभी उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 बनने के लिए अगेन या तो एक दो या तो एक लो, तो उसके लिए तो सेम ही है, उसको एक लेना या देना उसके लिए बात सेम होती है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी हो जाती है 1, आर्गॉन की वैलेंसी होती है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अब आर्गॉन क्या करेगा, वही बात आ गई, अब आर्गन के भी लास्ट में क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, देयरफॉर आर्गॉन को भी कोई जरूरत नहीं है, वो भी स्टेबल है अपने घर में, उसको दूसरे के घर की कोई चीज नहीं चाहिए, वो अपने घर में काफी संतुष्ट है, इसलिए आर्गॉन की वैलेंसी होती है 0। ओके, और इसीलिए आर्गॉन को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट भी उन्हें बोला जाता है। वही क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है। Potassium is electronic configuration 2 8 8 1, therefore the valency of potassium will be 1, and again same calcium 2 8 8 2, therefore the valency of the calcium is 2। okay, so guys I hope आपको ये समझा होगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, काफी इजी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। मगअप मत करिए, डोंट मगअप, प्लीज अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ ऑल दिस। अगर आपको बेसिक समझेगा, आप कभी भी किसी भी एटम की, किसी भी दूसरे चीज की आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। देखिए गाइस, क्या है ना, एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं आएगा, बट वो एक लाइक करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आए। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, एंड इफ यू वांट कि हम मोर वीडियोस लाए एंड यू आर सेटिस्फाइड विद आवर वीडियोस, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज चांसी एकेडमी। और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी भूलने का नहीं है। ओके, सो स्टे सेफ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।